کوئی جلسہ نہیں کر رہے، وہ ان کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ کسی جلسے سے کم نہیں. یہ شاہ محمود قریشی کے اوپر 12 کیسز میں گرفتاری ڈال دی ہے. ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں وہ ہم کریں گے. اٹس اے ویری بیڈ چوائس فار پاکستان رائٹ ناؤ اگر عمران خان گورنمنٹ میں آتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنلز کی رپورٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. السلام علیکم، میں ہوں ہداش میاں. مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی بہت اپڈیٹس آئی ہیں پاکستان میں. خدیجہ شاہ ریلیز ہوتی ہیں، شاہ محمود قریشی وہ اسٹل ری اریسٹڈ ہیں، وہ ریلیز نہیں ہوئے، لیکن ان کا کیس جو ہے نا وہ ایک بالکل نئی نوعیت کا بنا دیا گیا ہے. 3 MPO سے ریلیٹڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن دیا ہے. ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں، ایک طرف ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان ہیں جو ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ابھی. ساتھ ساتھ ان کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا الیکشن کمیشن نے. لیکن اس سارے میں سب سے ضروری چیز، سب سے ضروری بات وہ ہے وال اسٹریٹ جرنلز کی رپورٹ جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں پبلش کی ہے. اس ساری چیز کے اوپر بات ہوگی. اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. خدیجہ شاہ کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے شی از بیلڈ آؤٹ اور ان کی پہلے ہی ہو جانی تھی بیل، لیکن انسٹیڈ کوئٹہ لے کے ان کو چلے گئے اور وہاں پر ان کے اوپر مرڈر چارجز کا کیس چلا دیا گیا. ابھی بھی کوئٹہ پولیس نے ان کے اوپر ریمانڈ کا کیس جو ہے اپیل کی ہوئی تھی ان کے لیے کورٹ میں، وہ ریجیکٹ کر دی ہے اور انسٹیڈ شی واز بیلڈ آؤٹ وچ از اے گڈ نیوز فار پاکستان تحریک انصاف. اور جو لوگ اس وقت 9 مئی کے واقعے میں جو ہے اریسٹڈ ہیں اور اس سارے چیز کے اندر، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اور خدیجہ شاہ ان کی لیگل ٹیم نے اوبیسلی بہت کام کیا ہے اس ساری چیز کے اوپر. ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کا جو اریسٹ ہوا ہے 3 MPO کے ریلیٹڈ، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 MPO سے متعلق ایک فیصلہ بھی آ جاتا ہے. سب سے پہلے اس فیصلے کے اوپر بات کروں میں کہ وہ ویسے PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے جو سماعت ہے نا اس میں آتا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنر کے گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا. انہوں نے جسٹس بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO آرڈر کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے پہلے سے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا اور کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں. 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے 1980 کے قانون کی سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شانداز گلزار کی درخواست نپٹا دی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ فیصلہ آ رہا ہے اور اسی دن جو شاہ محمود قریشی ہیں جن کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور اگر یہ جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اصولاً ان کو آج ریلیز کر دینا چاہیے کیونکہ ڈپٹی کمشنر کے پاس وہ رائٹ ہی نہیں ہے گرفتار کرنے کا. ٹھیک، لیکن اس چیز کو انہوں نے پہلے ہی انہیں پتا تھا تو انہوں نے ٹیک کیئر کر لی. اس طرح ٹیک کیئر کی کہ شاہ محمود قریشی کے اوپر 12 کیسز میں گرفتاری ڈال دی ہے. عمران خان کا جب سائفر کا کیس میں آیا نا وہ سپریم کورٹ میں ضمانت منظور ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی کے بارے میں سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس بندے کی تو ایک کیس میں ہی جیل تھی نا، باقی عمران خان تو چلو 2 اور کیسز میں گرفتار ہیں، توشہ خانہ میں 190 ملین پاؤنڈ میں، تو وہ تو نہیں نکل سکتے. شاہ محمود قریشی نکل آئیں گے تو وہ عمران خان کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. 10 کیسز زیادہ عمران خان سے، ٹوٹل 12 کیسز میں ہی از اریسٹڈ رائٹ ناؤ. اس میں ان کو 8 مئی کے پرتشدد واقعات میں ضلع راولپنڈی میں درج تمام 12 کیسز میں شامل تفتیش کر لیا گیا. پروسیکیوٹر نے تمام 12 مقدمات میں 2 جنوری تک جسمانی ریمانڈ استدعا کر دی. جن مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا ہے ان میں GHQ آرمی میوزیم حملہ کیس، حساس ادارہ دفتر حملہ اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات شامل ہیں. کل جب وہ آئے ہیں عدالت میں سماعت کے دوران اپنی جہانگیر علی نے جو کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں، اب قرآن لائیں کہ میں تھا ہی نہیں، میں کراچی میں تھا اس ٹائم جس وقت کہ میرے اوپر ایک کیسز لگائے کہ میں لیڈ کر رہا تھا کسی موب کو ان ساری چیزوں کے لیے. بہرحال یہ وہی بات کہ کس طرح سے ایک جنگل کا قانون ہے، ایک طرف ایک چیز ڈراپ ہو رہی ہے 3 MPO کا جو پاور لی گئی ہے ڈپٹی کمشنر سے، دوسری طرف میک شور کر لیا گیا کہ اسٹل یہ باہر نہ نکلیں، وہ بھی 12 کیسز کے ساتھ. خیر ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کا جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے اور عمران خان کی کاغذات نامزدگی سے جو متعلق ہے فیصلہ اس کو محفوظ کیا ہے. NA
15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीटीआई की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ दायर एतराज़ मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर, सरदार मोहम्मद यूसुफ और जुनैद कासिम मौजूद थे। दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली के हल्के NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया, जो 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर ऑफिस के बाहर उसके मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। ये अभी आपने जो शाह महमूद कुरैशी जब अपनी जेल से वो कोर्ट से निकल रहे थे तब वहाँ पर भी बड़ी इमरान खान के हक में नारेबाजी हुई है, उनके वकीलों ने बड़े नारेबाजी की है और ये चीज़ बहुत टाइम से आपको देखने को नहीं मिली, ना उनका जलसा, ना उनके किसी बारे में उनका कोई नारा या कोई भी चीज़। तो आपको नज़र आती है ये चीज़, थोड़ी सी ग्रिप जो है ना वो लूज़ हो रही है। वो चाहते नहीं है कि ग्रिप लूज़ हो, लेकिन हो गई है। तो वो ये जो नारे लगे हैं ना वकीलों के इमरान खान के हक में, ये उसका सबूत है। खैर से सारी चीज़ के साथ साथ इमरान खान के ऊपर जो है वो और दीगर सियासतदानों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना आयद किया है, जिसमें उन्होंने अपने मरासले में कहा है कि इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों पर जुर्माने हुए, उम्मीदवारों और ओहदेदारान की जानिब से जुर्माना जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ज़ाब्ता इखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख और मुराद सईद 1 लाख रुपए जुर्माने के नादेंदा है। मुराद सईद ऑन द रन, ये वो बंदे हैं जो वांटेड हैं इस वक्त स्टेट की तरफ से 9 मई के केस में। वो बड़े इंपॉर्टेंट जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लेकिन आप वो देखें कि वो भी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शंस के बीच में उनका रोल है और असूलन नहीं होना चाहिए। इन लोगों के ID कार्ड जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, तो इससे नज़र आता है कि जी ग्रिप लूज है। इमरान खान ने अपने सारे टाइम में नैरेटिव बिल्ड किए थे 2-3, जिनमें से एक था कि हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहें वो हम कर लें, और एब्सोल्युटली नॉट। और एक तीसरा जी के अमरीकी साजिश हुई है, साइफर केस और मेरी गवर्नमेंट उतार दी गई है एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सारे नैरेटिव्स इमरान खान ने जो है पुट फोर्थ किए और अवाम ने उनको एक्सेप्ट किया, बेसिकली उनको रिजेक्ट नहीं किया। अब एक बात ऐसे है कि जी जो सियासतदान होते हैं ना, ये पूरी दुनिया का यही कल्चर है कि आधी सच्ची आधी झूठी बात करेंगे अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर, और लोगों को भी पता होता है कि यार एक हद तक ही ये बंदा सच कह रहा है, और वो चीज़ जो है ना लोग भी डेलिबरेटली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारी बाकी सियासी पार्टीज़ हैं वो भी कुछ इस तरह की बातें कर दिया करें जी कि हम कोई गुलाम है टाइप की। झूठ होंगी लेकिन सुनने में तो एटलीस्ट अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो ये भी नहीं करते। एनीवेज ये जो नैरेटिव्स थे ये इमरान खान के, ये कम्प्लीटली पीपल बॉट इट, और उसके ऊपर उनको बड़ा फ़ायदा मिला। इमरान खान की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, जो उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी थी वर्ल्ड वाइड, वो उसको बहुत इससे जो है ना इग्निशन मिली, हेल्प मिली। और फिर आ जाती है बीच में इंटरसेप्ट की रिपोर्ट। साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रिलीफ मिल जाता है। इंटरसेप्ट की जो है वो ट्रेंडिंग पे चलता है। इंटरसेप्ट है वो भी अमरीकी ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन स्टिल बात इमरान खान के हक में की है तो चलेगी, क्योंकि कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन PTI पे ख़त्म है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उन्होंने एक जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की है इमरान खान के बारे में, जो बेसिकली उनके हक में नहीं है, तो इसीलिए शायद आपने उसको ज़्यादा देखा नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या वो सच में इमरान खान के खिलाफ ही है, ये फोकस करना भूल गए। उस रिपोर्ट के जो वर्ड्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल बेसिकली मैं बता दूं वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है और बहुत क्रेडिबल है। अगर आप उसको इंटरसेप्ट के सामने रखेंगे तो यूल फाइंड इट मोर क्रेडिबल इन सारी चीज़ों के लिहाज से, उनकी हिस्ट्री और उसकी जो भी उनकी जर्नलिज्म है उसके अकॉर्डिंग। तो अब बहरहाल उसके वर्ड्स ये है कि जी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 8 फरवरी में ना आने के लिए कि उनकी अनसक्सेसफुल रहें, हर तरह की कोशिश कर रही है। और दूसरा कि अगर इमरान खान आ जाते हैं तब क्या होगा, पाकिस्तान सेटबैक पर जाएगा, यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा, बैकवर्ड जो है ना इसने जाना शुरू कर देना है, पहले बुरे हालात है, यानी कि इट्स अ वेरी बैड चॉइस फॉर पाकिस्तान राइट नाउ अगर इमरान खान गवर्नमेंट में आते हैं तो। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की रिपोर्ट है। तो अब आप ये देखें कि एक तरफ इमरान खान एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और ये जो 3 स्टेटमेंट्स अभी मैंने आपको बताएंगे कि हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, और
अमरीकी साजिश, साइफर केस, मेरी गवर्नमेंट उतारी गई, ये 3 नैरेटिव इमरान खान के अवाम ने जो है ना भाई एक्सेप्ट किए हुए हैं, इमरान बिलीव करती है इनके ऊपर। और उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की ये रिसेंट रिपोर्ट, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस आर्टिकल को लिखा, तो बेसिकली वो इमरान खान के नैरेटिव को ही सेकंड कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, इंटरसेप्ट वाली ही बात इंडोर्स हो रही है इस टाइम। ये सब एक ही, आप देखें तो ये पीटीआई के हक में चीज़ जा रही है कि जो इमरान खान ने कहा है वो वही चीज़ कर रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम कोई भी बाहर के, ख़ास तौर पे अगर आप अमेरिका को लें, जिसके साथ पाकिस्तान का रिलेशन शुरू से है और शुरू एंड तक रहेगा, ठीक है, जैसे मर्जी रहे लेकिन होगा। पाकिस्तान के लिए अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंस है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है। और उस टाइम आपको लेकिन वो आर्टिकल लिख के पब्लिश करके बताएं कि जी ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान आर्मी भी बड़ी कोशिश कर रही है कि इसको ना लाएं, हर तरीका इस टाइम जो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान आर्मी इमरान खान के अगेंस्ट। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप देखें कि इमरान खान का नैरेटिव अगेन जो है वो जीत जाता है। वही बात जो इमरान खान ने की जी साजिश है, मेरे अगेंस्ट गए हुए हैं इस टाइम, वो मेरे अगेंस्ट इसलिए गए हुए हैं, इमरान खान के अगेंस्ट इसलिए गए हुए हैं इस टाइम कि मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर हूँ, मैं पाकिस्तान को गुलामी से निकालना चाहता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ जो 75 ईयर्स जब से पाकिस्तान बना है तब से उन चीज़ों में पाकिस्तान को उस प्रेशर में रखा हुआ है। वो कहते हैं ना पाँव के नीचे रखना, तो वो कहते हैं जी ये इस चीज़ से मैं निकालना चाहता हूँ पाकिस्तानी लोगों को। तो वो नैरेटिव अगेन अब अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल्स ने जो है ना उसको हेल्प कर दी है इमरान खान की। इलेक्शन से पहले इमरान खान की वैसे भी जो है ना आप नोटिस करें तो बड़ी चीज़ों में बेहतरी आ रही है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ही फैसला देख लें कि उन्होंने ये जो 3 MPO का भी फैसला दे दिया है वो, और अभी लाहौर हाईकोर्ट मेरा ख्याल है थोड़ी सी रह गई है जिनकी तरफ से ऐसे इस तरह से नहीं आपको नजर आएगा कि वो कोई इस तरह फैसले दे रहे हो जो पीटीआई को किसी भी लिहाज से फेवर देते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ भी इस बारे में बात कर ही रहे हैं ना, जो पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन मुअत्तल किया है, कैंसल आउट किया है इलेक्शन कमीशन का। तो फिक्र तो सबको हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके सबको नजर आ रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्लोली इज राइजिंग बैक अगेन। अगर आप इन सारी सिचुएशंस को थोड़ा रीड करें ना तो आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने और जिस भी तरीके से जो पाकिस्तान तरीके से आपको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट कॉर्नर हो गई है शायद थोड़ी सी। PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सब आपको साइड पे नज़र आएंगे और इस वक्त आपको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आती हुई नज़र आ रही है। वन ऑफ द रीजन उसका ये है कि उन्होंने कभी ग्राउंड छोड़ी ही नहीं थी, हालांकि बहुत कोशिश की गई कि इनको ग्राउंड से उठा के बाहर फेंका जाए, लीगल और इलीगल वेज दोनों इस्तेमाल करके। लेकिन उनके कमिटमेंट है ये जी कि इमरान खान सही स्पोर्ट्स मेंटालिटी के हैं जी, नेवर गिव अप, और उन्होंने नहीं किया। अभी उनकी इलेक्शन कैंपेन डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन, जेल टाइम, 1000 मसले, लेकिन उनकी इलेक्शन कैंपेन इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। कोई जलसा नहीं कर रहे वो, लेकिन उनके जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो किसी जलसे से कम नहीं है। खैर एक ऑन अ लाइट नोट वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी की वीडियो मैंने देखी जिसमें वो अपनी शादी की सालगिरह का बता रहे हैं, जिनकी साथ उनकी वाइफ खड़ी हुई है और जो है वो जर्नलिस्ट वगैरह खड़े हैं जेल के अंदर, और वहाँ पर वो बता रहे हैं जी कि 40 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऑल इन अ वेरी हैप्पी मूड, इन अ हैप्पी इन्वायरमेंट। बहुत टाइम बाद इस तरह की कोई चीज़ देखने के लिए मिली है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे की और बाकी भी किसी पार्टी के बंदे की, सभी टेंशन में है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसलिए टेंशन में है कि हमारे ऊपर जो मसले आ रहे हैं, और बाकी PMLN और पीपल्स पार्टी इस वक्त इसलिए टेंशन में है अपने मसले छोड़ के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मसले और ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे और जो पिछले आए थे वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।